number 5, if part of theta equal to 5/2, then 15/8. So then, and the terminal side of the angle is not in quadrant 1. Theta not in quadrant 1. Not in quadrant 1. So implies theta in quadrant third. तो जब जानते हैं कि कॉट पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो देन व्हेन इट इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट. अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. तो हम देखते हैं कि फाइंड करनी है हमने वैल्यूज सिर्फ किसकी cos थीटा और कोसेकेंट थीटा. तो हम जानते हैं कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 15/8 square, that is 225/64. LCM 64 plus 225 and 289/64, that is cosecant square theta. Then cosecant theta equal to square root of 289/64 plus minus, and cosecant theta plus minus 17/8 as theta in quadrant 3. So third quadrant में cosecant is negative, so minus 17/8. And we know that cot theta equal to cos over sin, and cot theta equal to cos theta, and 1/sin is कोसेकेंट, क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज पता है. तो 1/sin क्या होगा, कोसेकेंट हमें फाइंड करना है cos. तो अब इनकी वैल्यूज इनकी पता है, वो लगाएंगे हम. cos थीटा 15/8, cos फाइंड करना चाहते हैं, और कोसेकेंट थीटा इज minus 17/8. 8 कैंसल बाय 8, तो इंप्लाइज दैट cos ऑफ थीटा 15 और अब ये minus 17 मल्टीप्लाई हो रहा है cos से, और लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड होगा, और साथ में ये माइनस. दैट इज द वैल्यू ऑफ cos. Hence question number 5 is come. M square plus 1/2m. M is greater than 0 and 0 less than theta, theta less than pi/2. This means this is the first quadrant, क्योंकि 0 डिग्री या 0 डिग्री और ये pi/2 यहाँ पे, और ये थीटा इन बिटवीन दीज, इन दोनों वैल्यू के दरमियान में यहाँ पे है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. दैट मींस थीटा कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो कोसेकेंट गिवन है, sin विल बी 1/कोसेकेंट, क्योंकि कोसेकेंट होता है 1/sin, तो sin इक्वल होगा 1/कोसेकेंट. तो ये आ जाएगा 2m/m² प्लस 1 cos square equal to 1 minus sin square, and then 1 minus sin 2m/m² plus 1 whole square, and this is cos square equal to 1 minus 4m² plus 2m² plus 1 square. LCM m4 power plus 2m² plus 1, 1 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी m4 plus 2m² plus 1 minus 4m², and then subtracting m4 plus 2m² minus 4m² minus 2m² plus 1 over m4 plus 2m² plus 1. Then cos square theta equal to m² minus 1² over m² plus 1 whole square. Then cos of theta equal to m² minus 1 over m² plus 1 whole square लिख सकते हैं हम इसको, कि ऊपर भी है स्क्वायर, नीचे भी होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस. cos of theta plus minus m² minus 1 over m² plus 1, as 0 less than theta, theta less than pi/2 implies cos of theta is पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे फंक्शन हमारे पास. एंड देन cos secant थीटा
इज इक्वल टू 1 ओवर cos, और cos का रेसिप्रोकल लेंगे हम, तो ये आ जाता है m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1 tan थीटा sin थीटा ओवर cos थीटा sin, that is 2m over m square plus 1 over m square minus 1 over m square plus 1 sin over cos की वैल्यू, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 2m over m square minus 1, that is tan of theta. तो cot theta will be equal to 1 over 10 and m square minus 1 over 2m, that is the answer. First quadrant में theta in quadrant first, then find the value of 3 sin theta plus 4 cos theta over cos of theta minus sin of theta. तो देन हम पहले sin और cos की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन ये रिजल्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू 5 over 2, तो यहाँ से हम कोसेकेंट फाइंड कर सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर 1 plus cos स्क्वायर 1 plus 5 over 2 square 25 over 4, LCM is 4, 4 plus 25, that is 29 over 4, that is cosecant square, and cosecant theta 29 over 4 square root plus minus, that is plus minus square root of 29 by 2, as theta in quadrant first showed cosecant theta is equal to square root of 29 by 2 and sin theta 1 over cosecant, so reciprocal of this, that is 2 over square root of 29, and then cos find करना चाहते हैं हम, तो cot of theta equal to cos over sin, so then cot theta 5 over 2, cos find करना है, and sin theta 2 over square root of 29, so implies cos of theta 5 over 2 क्रॉस ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा 2 over square root of 29, 2 2 cancel, that is 5 over square root of 29, that is cos theta. Now 3 sin theta plus 4 cos theta over cos of theta माइनस साइन थीटा, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन और कॉस, तो साइन की वैल्यू है हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस 4 और cos की वैल्यू 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाय 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, cos की वैल्यू माइनस साइन की वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, देन एलसीएम ऊपर वाले का स्क्वायर रूट ऑफ 29, 3 2 6 प्लस 4 5 20, इधर स्क्वायर रूट 29 एलसीएम नीचे वाले डिनोमिनेटर का 5 माइनस 2, ये स्क्वायर रूट 29 कैंसिल, तो 6 प्लस 20 26, 5 माइनस 2 3, दैट इज द आंसर। कैलकुलेटर के जरिए इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। सेकंड इसका वे है कि टेबल के जरिए कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। ये थर्ड वे है कि डायरेक्ट हमें ज़बानी वर्बली हम इनकी वैल्यूज कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम निकाल सकते हैं विदाउट टेबल और कैलकुलेटर। सिंपली 0 1 2 3 एंड 4 तक काउंटिंग लिखेंगे हम, और इनको ये लिखी हमने क्वाड्रेंट्स को देखते हुए, और 4 से डिवाइड कर लें सभी नंबर्स को और इन पर स्क्वायर रूट भी अप्लाई करें। इनका आंसर आ रहा है 0 1 over 2 1 over square root 2 square root 3 by 2 and 1, ये वैल्यूज है हमारे पास। तो ये साइन की वैल्यूज होंगी इधर से 0 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। cos की वैल्यूज बैक आएंगी, cos ऑफ थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90। कोई भी वैल्यू हम निकालना चाहें तो विदाउट टेबल कैलकुलेटर हम इस तरह से टेबल खुद बनाकर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये साइन और cos की वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। अब इनसे हम जब साइन cos हमारे पास आ जाते हैं तो देन इनसे हम बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सपोज दैट कि कहीं
tan ऑफ 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, इट विल बी sin 60 ओवर cos ऑफ 60, क्योंकि tan होता है sin ओवर cos। तो sin 60, sin की लाइन में 60 वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 ओवर cos 60 1 ओवर 2 कैंसिल हो जाता है, आंसर इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। tan 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इस टेबल के जरिए। तो नेक्स्ट हम 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 वेरीफाई कीजिएगा। वेरिफिकेशन होता है cos 60 minus sin 30 and cos of 30, सॉरी 30 पहले आ रहा है और 60 सॉरी बाद में आ रहा है। राइट हैंड साइड sin ऑफ 30 डिग्री। अब वैल्यूज लगाएंगे हम पहले इसमें sin 60 स्क्वायर रूट 3/2 and cos 30 square root 3/2, sin 30 1/2 and cos 60 1/2। तो ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर एंड माइनस 1/2 स्क्वायर, 3/4 minus 1/4 LCM 4, 3 minus 1 that is 2/4, that is 1 over 2, left hand side that is 1, and right hand side sin 30 and sin 30 1 over 2, that is 2 from 1 and 2, verify that left hand side is equal to right hand side। तो वेरीफाई हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड sin square pi by 6 ratio sin square pi by 4 ratio sin square pi by 3 ratio sin square pi by 2। तो pi by 6 हमें याद रखना होगा, हमने पीछे प्रीवियसली पढ़ा है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देन पाई by 6 इसको हम रफ में ये कैलकुलेट अगर करते हैं तो 180 by 6 that is 30। तो इट मीन हमें sin 30 की वैल्यू लगानी है। अब sin 30 की वैल्यू है हमारे पास 1 over 2 square, pi by 4 45, sin 45 1 over square root of 2 square, और sin 60 square root 3/2 square, sin 90 1 का स्क्वायर। तो that is 1/4, 1 over 2, 3/4 and 1, and multiplying by 4। 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि अगर रेशियो में वैल्यूज लिखी हुई हैं तो सेम नंबर के इनको डिवाइड भी किया जा सकता है और सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो हम 4 से इस सारी तमाम रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 क्रॉस 4 रेशियो, 1/2 क्रॉस 4, 3/4 क्रॉस 4 and 1 क्रॉस 4, 4 कैंसिल 1 2 2 4 2 आंसर रेशियो 3, 4 cancel 3 and 4 1 is 4, and that is right hand side, hence left hand side is equal to right hand side, hence it is true। So the value is the following: pi by 3 minus 10 pi by 6 over 1 plus 10 pi by 3। so वैल्यू जिनकी अप्लाई करते हैं हम 10 pi by 3 10 60 that is square root of 3 minus 10 30 1 over square root 3, so then 1 plus square root of 3 and 1 over square root of 3, square root 3 cancel 1 plus 1 और ऊपर डिनोमिनेटर में एलसीएम square root 3 और यहाँ आ जाता है square root of 3 square minus 1, 3 minus 1 over 2 square root of 3 that is 2 over 2 square root 3, 2 cancel then 1 over square root of 3, that is the answer। Number 3, verify the following when theta equal to 30 degree and 45। इनको हमने वेरीफाई करना है इन पार्ट्स को, लेकिन थीटा एक दफा 30 डिग्री लेंगे और एक दफा 45 डिग्री। तो हम कोई एक आध वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। एक पार्ट को हम सपोज दैट दिस सेकंड पार्ट
cos 2 थीटा इक्वल टू cos के cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, थीटा हम यहाँ 30 डिग्री लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए थीटा पहले हम 30 डिग्री लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है cos ऑफ 2 थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री लगा देंगे, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 2 into 30 दैट इज 60, cos 60 is equal to 1/2। राइट हैंड साइड cos स्क्वायर 30 माइनस, क्योंकि थीटा हम 30 डिग्री ले रहे हैं, sin स्क्वायर 30, cos 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर, sin 30 1/2 होल स्क्वायर, दैट इज 3/4 minus 1/4 and LCM is 3 minus 1/4 that is 2/4 and कैंसिल करते हुए 1/2। तो वेरीफाई हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के थीटा 30 डिग्री। और देन नेक्स्ट हम लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड cos of 2 थीटा, थीटा इज 45, cos of 90 degree and cos 90 is 0, left hand side, right hand side cos square 45 minus sin square 45, cos 45 1 by square root 2 whole square, sin 45 1 by square root 2 whole square, 1/2 minus 1/2 that is 0, hence left hand side equal to right hand side, that is the sin x is tan square 45 minus cos square 60 equal to x sin 45 cos 45 and tan of 60 degree, and then tan 45 1 square minus cos 60 1/2 whole square, sin 45 1 over square root 2, cos 45 भी 1 over square root 2 है and tan 60 is square root of 3, and then 1 minus 1/4 equal to x 1 over square root of 2 square और ऊपर आ जाएगा square root of 3। तो इसका एलसीएम 4 minus 1 square root of 3/2, क्योंकि square and square root कैंसिल, तो 3/4 equal to square root of 3/2x implies x equal to 3/4 और ये इधर रेसिप्रोकल लेंगे उलट 2 over square root of 3, 2 1 is 2 2 2 4, 3 over square root of 3 सॉरी 2 square root 3 रैशनलाइज करते हैं हम इसको, square root 3 and square root 3 3 square root of 3 over 2 square root of 3 square, 3 square root of 3 2.3, square and square roots cancel, 3 3 cancel, square root of 3/2, hence that is the value of x, secant theta and cos theta equal to 1, left hand side secant theta, so secant theta sin theta cos theta, secant is 1 over cos, so secant 1 over sin and cos, देख रहे हैं cos कैंसिल cos से हो रहा है, sin से कैंसिल सारे 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड secant theta tan theta secant square left hand side, so secant theta plus tan theta secant of theta, so secant is 1 over sin tan sin over cos and secant 1 over cos, LCM will be sin theta and cos square theta, क्योंकि ये cos से cos square हो जाएगा, और जब हम डिवाइड करेंगे इसको एलसीएम को, तो cos के कैंसिल sin मल्टीप्लाई किया 1 से, सॉरी sin कैंसिल पहले, तो cos के 1 से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर होगा, प्लस जब इधर करेंगे तो cos स्क्वायर कैंसिल sin मल्टीप्लाई sin
स्क्वायर, और हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी है कि 1 होता है 1/sin थीटा एंड cos स्क्वायर 1/sin कोसेकेंट 1/cos स्क्वायर secant स्क्वायर, hence लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड।